Hello students, good morning. Students, today is 15th September 2020. Your chapter 3rd recapitulation was going on. In the last class, I have taught to you about the division of exercise number 2 of chapter 3rd. Okay. So now before starting the exercise third, I will tell about the average. So students, what is average? When I have taught to you, then I have already told the formula of average. Average is equal to sum of quantities divided by number of quantities. ओके, इट मीन्स जो भी आपको क्वांटिटी, जो भी नंबर दिया होगा आप उसका टोटल करेंगे. सम मीन्स टोटल, एंड देन आफ्टर दैट जो भी आपकी नंबर्स हैं आप उससे उसको डिवाइड कर देंगे. ओके, सो हियर आई वांट टू टेल टू यू अबाउट द एक्सरसाइज थर्ड. इसको आपको हम एक्सरसाइज थर्ड में एक क्वेश्चन लेके एक्सप्लेन करेंगे. ओके students, this is your question number 1 of exercise 3. Here it has been given, find the average of these sets of number. Okay, ये नंबर के आपको सेट दिए हैं A B C D E. Okay, आपको इसका एवरेज फाइंड आउट करना है. So I will continue from the A part. In A part the numbers are 40, 90, 70 and 80. So look here, how can we solve it? Students, I have told to you about that. How can you find out the average? So I have already told to you about formula. Average is equal to sum of quantities divided by number of quantities. Okay, number of quantities. ये आपको हमने अभी फॉर्मूला लिखवाया है. दैट इज द सिंबल ऑफ द डिवीजन. सो आप डिवीजन की जगह आप डिवीजन का साइन भी लगा सकते हैं, अपॉन भी लिख सकते हैं. सो हियर यू कैन सी द नंबर्स आर 40 and sum has been told to you. So 40 plus 90 plus 70 plus 80. So there are the four numbers 40, 90, 70, 80. हमने इसको क्या करना है, ऐड करना है, because we want to find out the sum. So now number of the quantities is 1, 2, 3, 4. So you will divide from 4. Now you will add it in the rough column. Look here, 40, 90, 70 and 80. 0 का 0, 4, 9, 13. 13 plus 7, 20. 20 plus 8, 28. So here you have find out the sum. Sum is equal to 280. So 280 divided by 4. So 4 से आप 280 में डिवाइड करेंगे. 4 7 जा 28. Then 0 का 0. So here you have got the answer 70. So this is the average. Okay, so on the basis of that type of the method you can find out the average. So here you will write answer average is equal to 70. क्लियर? सो स्टूडेंट्स, आई थिंक एक क्वेश्चन हमने कराया होगा, सो आपको क्लियर हुआ होगा. सेम मेथड यू विल फॉलो बी सी एंड डी और ई पार्ट में. ई पार्ट में बेटा यू कैन सी इट हियर. हियर रुपीज दिया है, हियर सेंटीमीटर दिया है. सो जब आप इसको सॉल्व करेंगे सो मेथड सेम रहेगा बेटा, बस आपको यूनिट का यूज करना है. क्लियर बेटा? एनी डाउट? ओके, नाउ आई वांट टू स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 2. इन क्वेश्चन नंबर 2 इट हैज बीन गिवन, find the average of the first 9 counting numbers. 9 counting numbers means, first 9 counting number means, here it has been given 1 2 3 4 5 6 7 8 9. There are the 9 counting numbers, first 9 counting numbers. So these are 9. So you will find out the average of these first 9 counting numbers. So look here. So beta, same method you will follow here as like the question number 1. So you know about the formula. Average is equal to sum of quantities, okay, and divided by number of quantities. So students, अगर आपको इस तरह का क्वेश्चन आता है तो भी आप उसी मेथड से सॉल्व करेंगे जैसे आपने क्वेश्चन नंबर 1 किया था. ओके, सो हियर फाइंड द एवरेज हैज बीन गिवन फर्स्ट 9 काउंटिंग नंबर्स, एंड द फर्स्ट 9 काउंटिंग नंबर्स आर 1 2 3 4 5 6 7 8 9. So it means 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 plus 6 plus 7 plus 8 and plus 9. So first 9 counting numbers, it means number of quantities are 9. So now you will add it. 1 plus 2 is equal to 3. 3 plus 3 is equal to 6. 6 plus 4 is equal to 10. 10 plus 5 is equal to 15. 15 plus 6 is equal to 21. 21 plus 7 is equal to 28. 28 plus 8 is equal to 36. And 36 plus 9
equal to 45. So here you will write 45 upon 9. Okay, आप इसको चाहें तो रफ कॉलम में लाइन ड्रॉ करके आप टोटल सम इसका कर सकते हैं. Okay, so now you can see it, the numerator is 45 and denominator is 9, so you can easily divide 45 with 9. So look here how in the rough column you can see it here. 9 से आप 45 में डिवाइड करेंगे, so 9 5s are 45. So here you have got the average 5, so here you will write 5. So in the question it has been asked about you find the average of first 9 counting numbers. So here you will write the answer average is equal to 5. Clear students? I think no one student has any doubt. फिर भी बेटा डाउट होता है, so you can ask the query in query period. Okay, so students, as it is you will solve question number 3rd. आप क्वेश्चन नंबर 2nd की तरह क्वेश्चन नंबर 3rd भी सॉल्व करेंगे. द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन 6th सेक्शन ऑफ क्लास 5th इन विद्या स्कूल आर 43, 46, 40 and 43, 44 and 42. ओके, फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पर क्लास. सो बेटा आपको सेम मेथड से एवरेज निकालना है. आप इन 6 नंबर्स का टोटल करेंगे 1 2 3 4 5 6 एंड 6 से डिवाइड कर देंगे. देन आफ्टर दैट यू कैन फाइंड आउट द एवरेज. ओके, now look the question number 4. It is something different, not more different, it is only something different. Here it has been given the average daily expense of Vedya family is rupees 1454. How much do they spend in a week? It means average daily expenses जो है वो वैद्या फैमिली का 1454 रुपीज है. ओके, 1 वीक का एक्सपेंस कितना होगा. ओके, यहाँ अभी तक आप ऊपर क्या कर रहे थे बेटा, एवरेज निकालना था. यहाँ क्या दिया, एवरेज दिया है. आपको फाइंड आउट क्या करना है, टोटल एक्सपेंसेस फाइंड आउट करने हैं पर वीक के. ओके, सो लुक हियर, यू नो अबाउट दैट. एवरेज में आप क्या करते हो बेटा, फॉर्मूला एप्लीकेबल करते हो. एवरेज इज इक्वल टू, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड टू यू, एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ क्वांटिटीज डिवाइड बाय नंबर ऑफ क्वांटिटीज. सो हियर एवरेज हैज बीन गिवन एंड weekly expenses has been asked. So students, you know about that. How many days in a week? 7 days. Okay, so here you will write in book copy, look at your question. Okay, so here you will write 1 week is equal to 7 days. Okay, average daily expenses has been given, so here you will write average daily expense is equal to rupees 1454. Okay, then after that it has been asked about how much do they spend in a week, यानी वो कितने expenses जो हैं पर week करते हैं. So it means 7 days के आपको expenses निकालने हैं. Okay, therefore spend in a week. So बेटा 1 day का दिया है, 7 निकालना है. So you will multiply 1454 into 7, यानी आप 1 डे के एक्सपेंसेस में 7 डेज को मल्टीप्लाई कर देंगे. सो लुक हियर, हाउ कैन वी मल्टीप्लाई. 7 4 जा 28, 28 का 8 आप लिखेंगे बेटा एंड 2 कैरी फॉरवर्ड. 7 5 जा 35, 35 प्लस 2 37, 37 का 7 हियर आप लिखेंगे एंड 3 विल बी कैरी फॉरवर्ड. 7 4 जा 28, 28 प्लस 3 31, then 31 का 1 here, 3 carry forward. 7 1 जा 7, 7 plus 3 10. Okay, so you will write the answer here, you will put the unit also rupees. So you will write the answer. What is the question, how much do they spend in a week? So here you will write they spend in a week is equal to rupees 10,178. It remember बेटा, you will use the unit of measurement. जहां भी आपको यूनिट दिया है मेजरमेंट का, आप वहां पर यूनिट को यूज करेंगे. क्लियर बेटा. सो रुपीज यहाँ दिया है यूनिट का, सो हियर यू विल यूज द यूनिट ऑल्सो. इफ यू विल नॉट यूज द यूनिट एट द टाइम ऑफ द एग्जामिनेशन, देन योर मार्क्स विल बी डिडक्टेड ऑल्सो. ओके, सो डोंट फॉरगेट इट. Clear students? Students, you can see the question number 5 also. Question number 5, it has been given the heights of 6 friends in class 5th are 150 centimeter, 155 centimeter, 140 centimeter, 150 centimeter, 145 centimeter, 140 centimeter. Okay, in A part it has been given find the average height
सो बेटा सेम मेथड यू विल फॉलो। आप एवरेज हाइट फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, सबका टोटल करेंगे, एंड देयर आर द 6 फ्रेंड्स, सो यू कैन सी हाइट्स इज ऑल्सो 6, 1 2 3 4 5 6। आप इन 6 का टोटल करेंगे और 6 से डिवाइड कर देंगे, देन आफ्टर दैट यू विल फाइंड आउट द एवरेज हाइट। हमने बेटा ये कराया था जब हमने ये आपको एक्सरसाइज पढ़ाया था। सो आप फिर से ध्यान दे सकते हैं, आपको कुछ नहीं करना है, हाइट का टोटल करना है एंड 6 से आपको डिवाइड कर देना है, देन यू कैन इजिली फाइंड आउट द एवरेज हाइट। देन आफ्टर दैट हाउ मेनी चिल्ड्रन आर टॉलर देन द एवरेज हाइट। आपको जो एवरेज हाइट मिलेगी आप उसमें ये देखेंगे कितने बच्चे ऐसे हैं जो टॉलर है, ओके, एंड कितने बच्चे एवरेज हाइट से शॉर्टर हैं। सो हाउ मेनी आर शॉर्टर देन द एवरेज हाइट। क्लियर, एनी डाउट बेटा? सो सेम मेथड यू विल फॉलो। सेम मेथड मींस फर्स्ट आप एवरेज का फॉर्मूला लगा के एवरेज निकालेंगे, देन एवरेज से आप देखेंगे कितनी हाइट ज्यादा आ रही है और कितने की कम आ रही है। ओके, देयर आर द 2 क्वेश्चंस। सो आई थिंक स्टूडेंट्स एवरेज आपको समझ में आया होगा। एक्सरसाइज 3rd is totally based on the average. So I think recapitulation is now clear of exercise 3rd to all the students. Now students, I want to start exercise 4. But before starting exercise 4, I want to tell to you about the unitary method. It has been given here, you can see it here, unitary method. Look here and listen carefully. So here students, you can see it here. In the book it has been given the cost of 10 items, you can find out the cost of 1 item by dividing by 10। यानी अगर आपको 10 आइटम्स की कॉस्ट प्राइस दी है और आपसे कह रहा है कि यू विल फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ 1 आइटम, सो आप क्या करेंगे बेटा, उन 10 प्राइस की कॉस्ट प्राइस से आप 10 को डिवाइड कर देंगे, 10 से डिवाइड कर देंगे। यानी अगर आपको 10 आइटम की कॉस्ट प्राइस दिया है, सो आप उसको फाइंड आउट करने के लिए टोटल 10 की कॉस्ट प्राइस में आप 10 से डिवाइड कर देंगे, देन यू कैन फाइंड आउट द कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 आइटम। In the second point it has been given the cost of 1 item, you can find out the cost of 10 item by multiplying by 10। अगर 1 की कॉस्ट प्राइस दी और 10 की फाइंड आउट करनी है, सो आपको 10 को 1 आइटम की कॉस्ट प्राइस से मल्टीप्लाई करना होगा। सो लिसन स्टूडेंट्स, इन द यूनिटरी मेथड यू विल फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ 1। यानी सबसे पहले आपको क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा बेटा, आपको सबसे पहले 1 की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। ओके, आई थिंक क्लियर। नाउ लुक द एग्जाम्पल नंबर 1। एग्जाम्पल से आप देखेंगे तो ज्यादा क्लियर होगा। सो ध्यान से देखिएगा बेटा, समझिएगा क्या है यूनिटरी मेथड, क्योंकि हमने आपको ये आगे भी पढ़ाया, एक्सरसाइज 5th में भी यूज हुआ था, 4th में भी यूज हुआ है, 7 में भी यूज हुआ, सॉरी 12 में भी यूज हुआ है। सो लुक हियर, हाउ कैन यू फाइंड आउट। हियर इट हैज बीन गिवन अ बॉक्स ऑफ 10 पेन्स कॉस्ट ₹150। राजू वॉन्ट्स टू बाई 4 पेन्स, हाउ मच विल ही हैव टू पे। यानी क्या, अ बॉक्स ऑफ 10 पेन्स कॉस्ट 150, यानी एक बॉक्स है जिसमें 10 पेन है, उनकी कॉस्ट प्राइस कितनी है बेटा, ₹150। राजू वॉन्ट्स टू बाई 4 पेन्स, राजू कितने पेन परचेज करना चाह रहा है बेटा, 4 पेन्स। हाउ मच विल ही हैव टू पे, उसे कितने रुपए की पेमेंट करनी पड़ेगी। क्लियर? सो लुक द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन ऑल्सो। स्टूडेंट्स यू कैन सी इट हियर। हियर स्टेप 1 हैज बीन गिवन, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेन बाय डिवाइडिंग। आपको क्या करना है बेटा, आपको 10 पेन की कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट करनी है। सो कॉस्ट ऑफ 1 पेन इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ 10 पेन डिवाइडेड बाय 10। टोटल कॉस्ट प्राइस जो आपको 10 की दे रहा था वो 150 दे रहा था, एंड टोटल नंबर ऑफ द पेन हैज बीन गिवन 10। सो आपने 150 को 10 से डिवाइड किया, देन आफ्टर दैट यू हैव फाइंड आउट द कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 पेन इज इक्वल टू ₹15। क्लियर? देन आफ्टर दैट इट हैज बीन आस्क्ड अबाउट द कॉस्ट प्राइस ऑफ 4 पेन। सो बेटा आपने पहले 1 पेन की कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट कर ली, दैट इज ₹15। Then how can you find out the cost price of 10 pens? So here it has been written cost of 4 pens is equal to cost of 1 pen into 4। यानी 1 pen की cost price में 4 से आपको multiply कर देना है, then after that you can easily find out the cost of 4 pens। So 15 4s are 60, so 60 is your answer। It means cost of 4 pens is equal to 60। Okay, in the definition you can see it here, this method of first, यानी यूनिटरी मेथड को समझा रहा है बेटा, ध्यान सुनिएगा। this method of first finding the value of 1 by dividing and then the value of many by multiplying is called the unitary method। यानी आप firstly you will find out the value of 1, then after that जो भी वैल्यू पूछ रहा होगा आप उसे फाइंड आउट करेंगे। ओके, so I want to start exercise 4th now। in exercise 4th you can see the question number 1। Okay, in question number 1 it has been given the price of a dozen notebooks is ₹144। find the cost of 20 notebooks। dozen means 12, you know about that। एक दर्जन में 1 डजन में कितने होते हैं बेटा, 12।
सो 12 की आप 12 नोटबुक की कॉस्ट प्राइस दे रहा है 144 रुपीज एंड इट हैज बीन आस्क्ड अबाउट द cost of 20 notebooks. So look here, how can we solve it? So students, this is the solution. You can see it here. So students, you will write it here. 1 dozen is equal to 12. बेटा 1 डजन में 12 पीसेस होते हैं. फॉर एग्जाम्पल इफ यू वांट टू परचेज द बनानाज इन द मार्केट, सो आप शॉपकीपर को, जो फ्रूट सेलर होता है, आप क्या कहते हो? 1 डजन बेटा 1 डजन अंकल जी बनाना दे दीजिए, यानी 1 दर्जन आप बनाना दे दीजिए. डजन मीन्स दर्जन बेटा. सो वो कितने बनाना देता है बेटा? 12. सो इट मीन्स 1 डजन इज इक्वल टू 12. ओके, सो हियर द कॉस्ट प्राइस हैज बीन गिवन ऑफ 12 notebooks. So here you will write it here, since कॉस्ट प्राइस या कॉस्ट प्राइस लिख दीजिए बेटा आप. सिंस प्राइस ऑफ 12 नोटबुक्स इक्वल टू रुपीज 144, यानी आपको 12 नोटबुक की कॉस्ट प्राइस कितनी दे रहा है बेटा? 144 रुपीज. देयरफॉर प्राइस ऑफ 1 नोटबुक, बेटा फर्स्ट यू विल फाइंड आउट द प्राइस ऑफ 1 नोटबुक. सो बेटा 12 दिया है, 1 पूछे. रिमेंबर बेटा, ज्यादा दिया हो कम पूछे डिवाइड करेंगे, कम दिया हो ज्यादा पूछे मल्टीप्लाई करेंगे. ठीक है, सो हियर 12 दिया है बेटा, सो ज्यादा दिया है. 1 पूछ रहा है, कम पूछ रहा है, तो डिवाइड करेंगे. ठीक है, सो 144 को बेटा आप डिवाइड करोगे 12 से. ओके, सो लुक हियर, हाउ कैन यू डिवाइड? इन द रफ कॉलम 12 एंड 144. 12 वन जा 12, देन सब्ट्रैक्ट करेंगे बेटा. 4 में 2 गया 2 एंड 1 में 1 गया नथिंग. सो 4 वी हैव बीन नोटेड डाउन. 12 2 जा 24. So your division is 12. So here you will write is equal to rupees 12. It means price of 1 notebook is equal to rupees 12. Then after that it has been given, find the cost of 20 notebooks. So here you will write, therefore price of 20 notebooks. बेटा आप कॉस्ट भी लिख सकते थे, ऊपर प्राइस दिया था तो हमने प्राइस लिख दिया. आप कॉस्ट भी लिखते तो वो भी सही था. ठीक है, सो हियर यू कैन सी इट हियर. अभी हमने आपको क्या बताया? ज्यादा नंबर दिया हो कम पूछे डिवाइड करते हैं, कम दिया हो ज्यादा पूछे तो मल्टीप्लाई करते हैं. सो हियर यू कैन सी इट हियर, प्राइस ऑफ 1 नोटबुक हैज बीन गिवन रुपीज 12 एंड देन आफ्टर दैट इट हैज बीन आस्क्ड अबाउट द प्राइस ऑफ 20 नोटबुक. सो बेटा 1 दिया है, 20 पूछ रहा है, तो आप क्या करोगे? मल्टीप्लाई. कॉस्ट प्राइस कितनी दी है बेटा? 1 नोटबुक की 12. सो आप 12 से क्या करोगे बेटा? 20 को मल्टीप्लाई करोगे. सो लुक हियर, हाउ कैन यू मल्टीप्लाई? 20 into 12, 0, 2 2s are 4, then cross, then 0, then 2 1s are 2. So here you can see it here, you have find out the price of 20 notebooks is equal to rupees 240. So you will write the answer is equal to, in the question it has been given, find the cost of 20 notebooks. So you will write the answer, cost of 20 notebooks is equal to rupees 240. So students, this is your answer. अगर आपको कहीं भी फिर भी कोई डाउट होता है, सो बेटा यू कैन आस्क द क्वेरी. ओके, आपको एक्सरसाइज 3 में हमने आज आपको क्या बताया? एवरेज. एंड आफ्टर दैट आई हैव स्टार्टेड यूनिटरी मेथड. इफ यू हैव एनी डाउट इन बोथ एक्सरसाइजेज और इन एनी वन एक्सरसाइजेज और इन एनी क्वेश्चन, सो बेटा यू कैन आस्क द क्वेरी in your query period. Okay students.